I welcome all of you on the occasion of this 3-day national level webinar on yoga at home and everywhere. To welcome the India and few of the guests from the abroad. I welcome on behalf of Amriteshwar Arts Commerce Science College and Samaj Shikshan Windsor Mandals Amriteshwar Arts Commerce Science College. Our motivator and director of Samaj Shikshan Mandal Windsor, Principal Nandakumar Sadar sir. Along with this, we have a special guest, Dr. Praveen Sadhu sir, Management, Government of Gujarat. Guest speaker, Dr. Sanika Wang, Assistant Professor, Vishwakarma University, Pune. I welcome all of you for this 3-day national webinar. Now I request our technical team to play the university पुण्यमयी
Thank you, Mane sir. Am I audible, Mane sir? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much. Now, for introduction of the speech, I would like to invite Dr. Yogesh Sekande sir to give introductory speech. Mr. Awad, Sekande sir. There is little technical error, I think. Yogesh Sekande sir, are you there? आवाज येत नाही सर, आवाज ब्रेक होतोय. Sekande sir. इंटरनेट नसेल होत. There is little technical error occurs. I would like to invite Dr. Yogesh Sekande sir to give introductory speech. Yogesh Sekande sir, over to you. Over to you. Unmute yourself, sir. Unmute yourself, sir. Yes, unmute, sir. Thank you very much, and very warm good morning. Very happy morning and warm welcome to all the participants, all the invited dignitaries, members from management, and our respected principal and colleagues, and most important, all the dear students. It gives me heartful joy to welcome you all on behalf of Samaj Shikshan Mandal, Amruteshwar Arts, Commerce and Science College, Windsor, Maharashtra and India, as we are talking this and at national level. In this 3 days workshop on yoga at home and everywhere. Amruteshwar Arts, Commerce and Science College is the only single college in Vellore Tehsil and only the last ray of hope for the students, especially the girl students in this area. All the students in the college are from the foreigners background. Amruteshwar College was established in 1997 and with only arts faculty and spread its wing in terms of commerce in 2010 and arts and science faculty in 2013. We also added feather to our crown by adding junior science wing in 2014. The journey with handful students now grown at spectacular level
total 20 batches are out and total 700 plus students are building their career with this college. The most important role in this educational metamorphosis is due to the visionary leadership of our college, that is our principal, Dr. Sanjeev Latte sir, and Samaj Shikshan Mandal. The parent body of our college, Samaj Shikshan Mandal, who lead the change and amazing contribution in the lives of the villagers. Samaj Shikshan Mandal, under the able and dynamic guidance of directors of the management, are looking change and look ahead to the time, plan precisely and execute effectively, taking the college at all new level. Physical education department is one of the very leading department in the college. Sound body, sound mind in a sound body, and health is a wealth is a mantra of the physical education department. Very from starting in 1997 till date, physical education department has grown spectacularly and has great impact on the lives of the students. As this particular area is known for wrestling, wrestling become the dominant and most important game of the college. Students are performing extremely well at university level, state level, even at the national level, as far as our physical education department is concerned. Archery, boxing, weightlifting, these are some of the added feathers to the physical education department. Today, we are organizing national level workshop on yoga at home and everywhere. Yes, that all the participants all over the country will definitely benefit from it, and they will gain good amount of takeaways from this workshop. I look forward. I thank you, the organizers, to the principal and the management of this college, to give me an opportunity to introduce and preface about the college and about the program. Thank you very much. Thank you, Dr. Sekande, Over sir. to Dr. Ramle, sir. Thank you, Dr. Sekande, sir. Today we have a distinguished guest, our motivator, director of our education society, Dr. Nandakumar Sagar, sir. Along with his, we have a distinguished guest, Dr. Praveen Jadhav, sir, and some of the distinguished participant from India as well as from abroad. So we have with us Professor Rubina Sheikh from Saudi Arabia, Professor Nazneen Mullah, Doha, Qatar, Dr. Manohar Mane, sir, Dean of Department of Sports and Physical Education, University of Mumbai, Dr. Madhuri Sadgir, Head Department of Sports and Physical Education, Mumbai University. We have Dr. Sujata Shinde, Madam, Principal, Bharati Vidyapet. And we have today's speaker, Dr. Sanika Baum, Vishwakarma University, Pune. I welcome all these delegates on behalf of Samaj Shikshan Mandal Windsor and Amruteshwar Arts, Commerce and Science College. Now I would like to call upon Principal Dr. Nandakumar Sagar, sir, for inaugural speech. Over to you, Nandakumar Sagar, sir. I think there is some technical errors with the Sagar, sir. I would like to welcome Dr. Praveen Jadhav, sir. He is an assistant professor, IIT RM, Ahmedabad. I request Dr. Praveen Jadhav, sir, to give welcome and best wishes for this program. Over to you, Dr. Praveen Jadhav, sir. Good morning, everyone. I hope my voice is clear. Yes, sir.
Yes, so I would like to thank management first for inviting me for this very important seminar. And like I would just like to say that that why health is really important, because when I was pursuing my PhD from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, I thought, okay, that time the research was my main priority, and then I thought that, okay, what will happen where if you are not doing some exercise or some kind of like meditation or on. Then when I joined as assistant professor with University of Petroleum and Energy Study, and then I started getting so many problems related to health. So I could not concentrate, I could not do my teaching as well as whatever the other activities I was not able to do properly. Then I realized that whatever you are doing, what is really important, that you need to think about your health first, because other things will come later. So for everyone, I'm studying whatever the participant right now from all over the India, that whatever you are doing, but if you are not well from within your inner body, you cannot contribute to any kind of thing. So whether it is a contribution to the society, it is contribution to the students, as we faculty are doing, giving the education to the student. So whatever you are doing, first it is important to keep your body fit. So I think, like that then I started the yoga like from the last 1 year, and I'm daily doing, whether right now also I'm traveling, but in the morning I did the yoga exercises, and I'm feeling that, okay, whenever you are doing something from your inner side, like you are getting the satisfaction, okay, and your body is also thinking that, okay, and it is like it's very important. So again, like on this very important national seminar, I want to convey my best wishes and say that, like, you need to be a fit. And so obviously the yoga is a very important therapy through which we can like keep our body fit. And so that right now, if we know that recently we celebrated International Yoga Day, and from all over the world people join. Even I have like some session with some of the like countries ambassadors, like embassies, all the embassies whichever like established like India established in the other countries, they also like is doing this yoga sessions. And that why our India's image is very good into the international forums. So that way the yoga is really important. So with this word, I will again thank you for organizers to giving me opportunity to talking with you. I know I am traveling, so due to the lag time, I'm just like ending my words to like for this seminar with best successful things. Thank you, organizer again. Thank you very much, Jadhav sir, for your best wishes for this program. Now I request to our principal, our motivator, to address us. Dr. Principal Latte sir, over to you. Hello. Hello. You are audible, sir. Hello. आजच्या राष्ट्रीय लेवलच्या सर्वांचं स्वागत करतो. समाज शिक्षण संचलित अमृतेश्वर कला महाविद्यालय विंझर चे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी प्राचार्य तसेच डॉक्टर प्रवीण जाधव सर, महाविद्यालयातील शारीरिक शिक्षण विभागाच्या संचालिका डॉक्टर शीतल शेंडे, तसेच महाविद्यालयातील सर्व आणि आजच्या कॉन्फरन्ससाठी राष्ट्रीय पातळीवरील तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बरेच प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचं महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधी म्हणून मी स्वागत करतो. आणि आजच्या ह्या 3 दिवसाच्या वेबिनार मध्ये, राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये खूप सन्माननीय आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे व्याख्याते उपस्थित राहणार आहेत.
आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यातून आपल्याला भरपूर असा मार्गदर्शन मिळणार आहे. अशा या वेबिनार मी महाविद्यालयाच्या वतीनं प्राचार्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you very much, Late sir, for your motivation Yes, and words of your inspiration. Now I request Dr. Sheetal Shenkar madam, who is the coordinator of today's program, to introduce our today's guest speaker, Dr. Sanika Bam. Over to you, madam. Okay, thank you, sir. Very warm welcome, Sanika Ban, madam. We are feel grateful to welcome her in our national webinar. She is very talented personality and dynamic personality in the field of yoga. Sanika Ban, madam, head of department of yoga and naturopathy, Vishwakarma University, Pune. She had internationally acclaimed yoga trainer, has 6-year experience in yoga. She has done her master's in yoga from KJ Somaiya College, Mumbai. She has completed her diploma from Kaivalya Dham Yoga Institute. She is power yoga trainer also. Always like participants of traditional yoga and modern yoga. She has done masters in Indian classical music from SNDT University. She worked for special children, mentally retired children. She had worked for Savitribai Phule Pune University, YCM, VIT, Singapore, Fitness Club as visited faculty. She has running YouTube channel which named as Chittaranga Yoga. Welcome, ma'am. I shall request you start your enthusiastic session. Yes. Thank you so much. Thank you so much, all of you. And Sheetal ma'am, thank you so much, principal sir, and all the staff and dignitaries. Yes, good morning, all of you. And I request you to please mute yourself. Please check your audio. Please mute yourself. Perfect. Yes. Yes. First of all, good morning सबको, शुभ प्रभात. आज जो हमारा सेशन है आपको पता होगा, इट्स अ चेयर योगा सेशन एंड कुछ स्ट्रेस के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे. हमें योग ही क्यों करना है इसके बारे में भी बात करेंगे. यू जस्ट टेल मी, am I audible, all of you? Sheetal ma'am, am I audible? Yeah, ma'am. Yeah, yes, too much audible. Yes, thank you so much. So yes, तो हम पहले इसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले, क्योंकि ये सेशन योग का है, तो बिना प्रेयर करे हुए, बिना अपने आप को शांत किए हुए, माइंड को शांत किए हुए सेशन आगे नहीं जाएगा. So I request to all of you, just keep your back straight, everyone. Head neck back in a one line, long spine. Keep your shoulder relaxed. Head neck back in a one line. पीठ सीधी रहेगी सबकी. आप कहीं पे भी बैठे हो, आप आपके चेयर में हो, आप नीचे बैठे हो, और आंखें धीरे से बंद करेंगे. Close your eyes nicely. Just close your eyes. I request to all of you again, please mute yourself, so मेरी आवाज अच्छे से पहुंचेगी. Please check your Yes, ma'am. audio. Yes. Please check your audio and please mute yourself. Yes, Sanjeev sir, please mute yourself. I request to you.
यू सो मच। आंखें अच्छे से बंद रहेगी सबकी। चेहरा एकदम रिलैक्स रहेगा और चेहरे पे हल्की सी स्माइल होगी। Again, head neck back in a one line. Just check your posture. Relax your face. Relax your forehead. Smile on your face and nicely close your eyes. Settle down. Hands in Namaskar Mudra, or you can place your palms on your thighs. And here I'm going to start a nice prayer. Om Sahana Bhavatu. You just listen to me. Eyes closed. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. आंखें बंद रहेगी। Observe your silent mind, silent body. Gently, slowly rub your palms. दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे. And just place your palms on your eyes nicely, on your face, and slowly, while exhaling, open your eyes. Yes, perfect. Am I audible to you? Yes, Audible, madam. visible? Okay, Yes. thank you so much. Thank you so much. सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आपका बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आज कल जो सिचुएशन है 1-1.5 साल से उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए आपने एक अच्छा मार्ग चुना है. हमेशा मुझे ये लगता है कि डेस्टिनेशन हमें पता है, पर सही दिशा मिले तो वो जो हम जर्नी है, हमारी जो जर्नी है वो अच्छे से हो सकती है. अदरवाइज हमारी जो जर्नी है वो ठीक से नहीं हो पाती, बहुत ही असंतुलित, बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती है. तो इस जर्नी में आपने योग चुना है, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट में करना चाहूंगी. यस, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे भाई ये स्ट्रेस होता क्या है. आप थोड़ा खुद से पूछ लो कि आपकी तबीयत कैसी है, आप सब लोग कैसे हो, आप कैसे फील कर रहे हो, आप कैसे महसूस कर रहे हो. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. अब हम देखते हैं थोड़ी सी हम उसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में देखेंगे कि ये स्ट्रेस होता क्या है. Stress is the feeling of being overwhelmed or unable to cope with mental और इमोशनल प्रेशर. ठीक है. अब ये ज्यादा डेफिनेशन बताने की हमने बस डेफिनेशन उसकी देखी, पर एक्चुअल होता क्या है हमारे साथ, हम ये एक्चुअल में महसूस करते हैं. ये स्ट्रेस जो है वो आपने भी महसूस किया है, मैंने भी महसूस किया है. और आप अक्सर ये बात करते होंगे, ये सेंटेंस अक्सर हमारी बातों में आता है कि नहीं अभी मुझसे बात मत करो, मैं स्ट्रेस में हूँ.
कि नहीं अभी मुझसे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये तो हमेशा अक्सर होता रहता है, राइट? सो ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें आते हैं, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हमें आते हैं और हम उसे ओवरकम नहीं कर सकते इन अ पॉजिटिव वे हम उसके साथ अच्छे से फाइट नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जो स्ट्रेस लेवल है ये हमारा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। एम आई राइट? आपको खुद से ये कुछ सवाल जो है वो पूछने हैं। अगर हो सके आपके पास पेन पेपर है तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो कि स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, पर ये क्यों है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। ऑफ कोर्स अभी हमने देखा कि स्ट्रेस ये इमोशनल है, फिजिकल है, सोशल लेवल पे हमारे अलग अलग स्ट्रेस होते हैं। कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ फैमिली रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे उसके रूट कॉज हो सकते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है कि भाई मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है, ऐसे हम कहते हैं। Yes, stress is your body's reaction to challenge or demand. ये आपके बॉडी का, आपके फिजिकल बॉडी का एक रिएक्शन है कि आप कुछ एक सिचुएशन बनी हुई है, उसके साथ आपको डील करना है इन अ पॉजिटिव वे, पर वो हम कर नहीं सकते। तो क्या होता है, एक तो हम उसे चैलेंज करने के लिए जाते हैं, अरे मेरे साथ ये ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये ऐसे क्यों होगा, हमेशा ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये ऐसे हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। या हम डिमांडिंग हो जाते हैं कि नहीं मुझे इतना मिला है और मुझे इतना चाहिए, तो और वो मिलता नहीं है और हमारा स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जाता है, राइट? सो आपको महर्षि पतंजलि ने बहुत एक अच्छी कॉन्सेप्ट बताई है जिसे वो कहते हैं संतोष। संतोष का मतलब क्या है? संतोष का मतलब ये है कि सेटिस्फैक्शन, जो आपको मिला है, आपको एफर्ट्स लेने हैं उसके लिए, बिल्कुल लेने हैं। आपको बहुत सारा कर्मयोग भी करना है, अच्छे से बैलेंस रह के करना है, पर रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं है। रिजल्ट्स उसके क्या आएंगे हम नहीं बता सकते। तो जब रिजल्ट्स हमें आते हैं तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग मत रखो। जो रिजल्ट्स आपको आए हैं उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। अगर उसमें आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल भी कम हो सकता है। इस सेशन में ना कि हम ये देखेंगे ज्यादा कि स्ट्रेस ये है, स्ट्रेस वो है। स्ट्रेस से आप कैसे फाइट कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। और मैं तो आगे जाके ये कहूंगी कि स्ट्रेस ना आए इसलिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके हम एक्चुअल बहुत ही आगे की स्टेज देख रहे कि मुझे ऑलरेडी स्ट्रेस है और स्ट्रेस के साथ में कैसे लड़ सकती हूँ, मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ। नहीं, आपको आगे स्ट्रेस ना आए इसीलिए आपको अभी से एफर्ट्स लेने हैं, थोड़े से फिजिकल एफर्ट्स भी लेने हैं और थोड़े से मेंटल भी लेने हैं, जो हमें योग साधना सिखाती है, वो हम देखने वाले हैं। अब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एक आता है एक्यूट स्ट्रेस। दिस इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके लाइक अभी स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में एग्जाम्स में अरे मैंने पढ़ाई की नहीं है या जितना चाहिए उतना हुआ नहीं है मेरी स्टडी, तो मुझे एकदम से स्ट्रेस आ गया, तो वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है। या देखो अभी आपको कहीं पे जाना है, आपको गाड़ी पकड़नी है, वो गाड़ी छूट तो नहीं जाएगी, मुझे लेट हुआ है, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो गया। आजकल पूरा ऑनलाइन का जमाना है, इसमें भी हमें एक छोटे छोटे स्ट्रेसेस आते रहते हैं। वो जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के स्ट्रेस होते हैं, वो ज्यादातर रहते नहीं है, वो कुछ मिनट्स के लिए या कुछ एक दो दिन के लिए वो रहेंगे। इट्स कॉल्ड एज एक्यूट स्ट्रेस, मतलब ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। Okay, it also occurs when you do something new or exciting. Yes, it's very important कि हम जब कभी कुछ नया करना चाहते हैं
नया करने के लिए जाते हैं, हमें पता है कि मेरा लिमिटेशन क्या है, उससे आगे वो लिमिट हम क्रॉस करते हैं, हम अपने आप में एक चैलेंज लेते हैं और वहां से हम आगे जाने की जब कोशिश करते हैं, इट्स कॉल्ड, वहां पे उस टाइम पे भी, उस सिचुएशन में भी आपको एक स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस होता है एक्यूट स्ट्रेस। पर मैं आपको बताना चाहूंगी ये एक्यूट स्ट्रेस जो है वो बहुत प्यारा स्ट्रेस है, क्योंकि वो हर एक को लेना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस नहीं है उस सिचुएशन के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए, तो आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। ओके, सो खुद को प्रूव करने की जब बात आती है तो ये थोड़ा सा एक्यूट स्ट्रेस तो वहां पे होता है, पर वो स्ट्रेस आता है और जितने जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। पर अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहा तो क्या होगा? तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये जब स्ट्रेस रहता है, इट्स कॉल्ड एज क्रोनिक स्ट्रेस। तो ये क्रोनिक स्ट्रेस क्या है? this stress is that lasts for a longer period of time. It's very dangerous to your mental state, emotional state and your physical stress also. तो अब हम देखेंगे कि क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है। अभी अभी का हम एग्जाम्पल लेंगे कि मेरे नेबर है, उनको कोरोना हुआ है, क्या मुझे भी होगा? और उसी थॉट में, उसी रेसिंग थॉट्स में इतने डीप 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 चले जाते हैं कि वो क्रोनिक स्ट्रेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो बार बार टेम्परेचर चेक करना, बार बार खुद को ऑब्जर्व करना, ये बहुत सारे लोग कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। पर आपके मन मतलब आपका जो मेंटल लेवल है वो अगर आप बैलेंस रखो तो ये क्रोनिक स्ट्रेस आपको नहीं आएगा और आपको वो लेना भी नहीं चाहिए। आज तक क्या हुआ छोड़ दो, आगे की हम बात करेंगे। तो ये सोचो कि स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होता। स्ट्रेस में हम अगर सही दिशा में जाते हैं, उसकी रेमेडी हम ढूंढते हैं, वो दूर करने के लिए अगर आप कुछ मार्ग, कुछ साधन ढूंढते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट गोज ऑन फॉर वीक्स, मोर देन अ वीक, तो उसे कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। या मंथ, महीनों महीने है, वीक्स और मंथ्स इज कॉल्ड एज क्रोनिक स्ट्रेस। कि बहुत सारे महीने मुझे स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो इट्स कॉल्ड एज क्रोनिक स्ट्रेस। ओके, you can become so used to chronic stress that you don't realize it is a problem. Yes, आपके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ निगेटिव हो रहा है, पर आपको वो पता ही नहीं है। तो आपको ये रियलाइजेशन होता नहीं है कि मेरे साथ, मैं स्ट्रेस में हूँ। हम वो डिनाई करते हैं कि कोई आपको बताने की भी कोशिश करते रहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके कलीग है, आपके फ्रेंड्स है, कि वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप स्ट्रेस में हो, पर हम उसे डिनाई करते हैं, उसका रियलाइजेशन आपको आता नहीं है। If you don't find ways to manage stress, it may lead to health problems. Yes, it may lead to health problems. अगर आपने वो जानने की कोशिश नहीं की कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन सा स्ट्रेस है, तो आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम क्या क्या होती है वो एक बार हम देखते हैं। साइकोलॉजी में, योग में एक बहुत अच्छी टर्म है, अच्छे से सुनो, पेन है तो लिख के लो और बाद में आप वो फाइंड आउट भी कर सकते हो। इट्स कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक डिजीज। अगेन आई रिपीट, इट्स कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक डिजीज। अब ये साइकोसोमैटिक है क्या, ये आपको मैं बताना चाहूंगी। कोई भी डिसऑर्डर हो या कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिसऑर्डर हो या कोई भी डिजीज हो, उसका रूट कॉज क्या है? हमारा मन। ओके, सो आपका जो मन है, वहां से विचार, वहां से रेसिंग थॉट्स जो है वो धीरे 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 करके शुरू हो जाते हैं और वो इतने बढ़ते हैं कि वो
क्रोनिक स्ट्रेस में बदल जाते हैं। रिपीटेटिव थॉट से वो आपको हैमर कर रहे हैं, एक ही थॉट है, ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, और वो रिपीटेटिवली आ रहा है और वो क्रोनिक स्ट्रेस में बदल रहा है, महीनों महीने, बहुत सारे महीने तक, बहुत सारे मंथ्स तक, वीक्स तक, सालों तक आपके साथ है, वो आपके मन में है, बहुत नीचे तक गया हुआ है। और उस स्ट्रेस का परिणाम, उस स्ट्रेस का जो साइड इफेक्ट है वो आपके शरीर पे हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक डिजीज, और डिसऑर्डर्स भी होते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी कि साइकोसोमैटिक डिजीज कैसे होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वो पेशेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज क्यों होता है? आपको फिजिकल लेवल का पता है, सबको हमें पता है उसके लिए क्या करना है फिजिकल लेवल पे, वो भी पता है, पर उसका रूट कॉज कहाँ है? हमारे मन में है। बहुत सारा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा पाचन ठीक नहीं हो पाता, हमारा डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता तो क्या क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हुआ है, एसिडिटी हो रही है, खाने पीने के टाइमिंग्स ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा स्टमक डिस्टर्ब है, उसलिए नींद भी नहीं अच्छे से हो रही है, और नींद नहीं हो रही है अच्छे से, हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें होने की वजह से आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका आहार डिस्टर्ब हो गया, आपकी निद्रा, आपकी नींद, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए, और इन सब की वजह से आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली जो है वो इम्बैलेंस हो गई। जीवन शैली आपकी इम्बैलेंस हो गई, अगेन स्ट्रेस बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत है लाइफ में, पर पता नहीं है पॉजिटिवली उसको फेस कैसे करें। तो वो जो मेंटल लेवल, आपका जो मेंटल स्टेट है वो जा रहा है आपके फिजिकल लेवल पे, और आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आप जो खा रहे हो, आप जो आहार ले रहे हो, आपका जो डाइट है वो आपकी बॉडी एडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। जब हम डायबिटीज तक पहुंचते हैं, पहले ये सोचो कि डिसऑर्डर से इसकी शुरुआत कैसे होती है। हम जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी एडॉप्ट नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आपका मन वहीं पे घूम रहा है, उस स्ट्रेस के वहीं पे घूम रहा है। तो उस मन को हमें बाहर निकालना है। ये एक हो गई बात डायबिटीज की। देन अभी कॉमन हम प्रॉब्लम देखते हैं फीमेल में, विमेंस में जो है पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अनफॉर्चुनेटली कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा अभी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। हम मन किसी के साथ, आपके जो थॉट्स है वो आप शेयर नहीं कर सकते, ओके, शेयरिंग की आदत नहीं है। तो ये जो सब चीजें हैं जो मन में चल रही है वो किसी ना किसी ऑर्गन पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बस इतना ही हो रहा है। आपके पास आपका एक शरीर है, आपका एक मन है, मन में कुछ होता है, रेसिंग थॉट्स आते हैं, वो बार 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 आते जाते हैं, और उसके बाद वो क्रोनिक स्ट्रेस में बदल जाते हैं। उसके बाद जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है तो वो अपना रूप ऑर्गन के ऊपर दिखाने शुरू करते हैं। तो एक आएगा, आपके लंग्स पे कोई अटैक करेगा वो स्ट्रेस, देन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक होगा, देन आपके किडनीज पे अटैक होगा, फिल्टरेशन नहीं होगा अच्छे से, आपके हार्ट पे अटैक होगा, आपके ब्रेन पे अटैक होगा। ये अलग अलग जो जितने ऑर्गन्स है, आपका जो मानो जो पूरा इंटरनल, आपकी इंटरनल जो बॉडी है उसको वो खा जाता है। ये जो स्ट्रेस है वो उसका पूरा विनाश करता है। विनाश ये शब्द मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे आया है, भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताया है भगवत गीता में। इस स्ट्रेस को
जो हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं या हम कभी कभी टेंशन कहते हैं, इससे एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट दी है योग में, योग शास्त्र में, भगवत गीता में और पतंजलि योग सूत्र में। उसे कहा है क्लेश। कुछ लोग उसे हिंदी में कलेश ऐसे भी कहते हैं, इसे कहते हैं क्लेश। ओके, तो ये क्लेश जो है, ये जो स्ट्रेस है, ये क्लेश के रूप में हमारे मन में बसता है, और यही वो जो क्लेश है वो आपके पूरे फिजिकल बॉडी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। ये जो रिफ्लेक्शन है, उससे बचने के लिए, उन क्लेश का निवारण करने के लिए, उन क्लेश का विनाश करने के लिए योग में बहुत सारी रेमेडीज बताई गई है, जो हम आज देखेंगे। तो आपको पता चला होगा कि स्ट्रेस क्या है, ये क्लेश क्या होते हैं। बार बार टेंशन मत लो, बिल्कुल भी हैप्पी रहो, ये मैं आपको पहले ही बताती हूँ। और आपको जो भी लगता है स्ट्रेस आपको कहाँ पे है, एक पेपर पे लिखो और खुद को आज एक क्वेश्चन पूछ लेना कि सच में क्या ये स्ट्रेस है या मैंने ये क्रिएट किया है। हमारा क्रिएशन भी बहुत होता है, बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हमने खुद कुछ क्रिएट किया हो। तो एक पेपर पे बैठ के शांत होके खुद के लिए टाइम देना सीखो, 5-10 मिनट। ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही एक ये है। तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम दो और सोचो कि मेरे लाइफ में कितने स्ट्रेस है और उसके लिए क्या करना है, वो अभी हम देखेंगे। एवरीवन, आर यू रेडी? जस्ट टेल मी, unmute and tell me. Are you ready for it? Yes, ma'am. Perfect. Thank you so much. Yes. अब हम देखेंगे कि योगिक रेमेडीज क्या है हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए। ओके, अब आपको एक चाहिए चेयर। आई होप आप चेयर पे ही बैठे होगे। मैंने सेशन के पहले ही बताया था कि आपको आपके चेयर के ऊपर बैठना है। परफेक्ट। 1 minute. Give me a minute. Yes, am I visible to you, everyone? Yes, ma'am. Perfect. Thank you so much. Yes. आपकी ये जो चेयर है, उस चेयर पे आपको आगे की तरफ बैठना है एंड जस्ट कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, कीप योर बैक स्ट्रेट एवरीवन एंड कीप योर पाम्स ऑन योर थाइज। आपकी जो हथेलियां है वो आपके थाइज पे रहेगी। कीप योर शोल्डर रिलैक्स, कीप योर फेस रिलैक्स एंड बैक स्ट्रेट एवरीवन। आपके जो दोनों पैर हैं वो नीचे टच करेंगे ग्राउंड पे। अगर आपने शूज पहने हैं तो यू कैन रिमूव इट एंड यू कैन डू दिस सेशन। परफेक्ट। रिलैक्स योर palms on your thighs and look at me. I hope you are ready for the session. अब हम पहले देखेंगे कि हमारी जो नेक है और शोल्डर है, वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग आजकल कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है। आई नो, लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं तो हमारे शोल्डर और जो नेक है उसमें काफी प्रॉब्लम हुआ होगा। तो पहले हम उसको रिलैक्स करेंगे। जस्ट टर्न योर नेक, वेरी स्लोली डू इट। जस्ट टर्न योर नेक टू राइट साइड। Slowly come back. Now turn your neck to left side. Everyone keep breathing. Come back. Now inhale and up, chin up, look up. Come back. Gaze in front. Now chin down, chin to chest. And come back. Super. Now bend your neck to right side.
like me. Perfect. Go ahead. Breathing. सगळ्यांनी श्वास घेत राहा छानपैकी. And come back. Smile on your face. Serious चेहरे मत रखो, एकदम हल्के से easily करो. Perfect. Now bend your neck to left side, everyone. Super. Come back. Very nice. Again, neck to right side. Come on. Normal breathing. Come back and neck to left side. Super. Come back. Very nice. Yes. So हमने नेक के लिए देखा है और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ. अब हम देख रहे थे कि स्ट्रेस कैसे होता है और साइकोसोमैटिक डिजीज कैसे होते हैं. एक साइकोसोमैटिक डिजीज है, इट्स कॉल्ड एज थायराइड. थायराइड से क्या होता है? फीमेल में बहुत ज्यादा देखा जाता है. थायराइड में एक तो वेट गेन होता है, नहीं तो वेट लॉस होता है. तो ये जो दो टाइप्स है थायराइड के, उसके लिए कुछ नेक के, कुछ गर्दन के एक्सरसाइज है, वो देखेंगे. उसे फेस योगा भी कहा जाता है. ये फेस योगा आप कहीं पे भी बैठ के कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो. ओके. अभी मैंने आपको एक टाइप दिखाया था जिसमें आपको चिन ऊपर लेके जानी थी. तो यू फील स्ट्रेच इन योर थ्रोट रीजन. यहाँ पे आपने काफी स्ट्रेस महसूस किया होगा, स्ट्रेच महसूस किया होगा. तो अब हम देखेंगे कि थायराइड के लिए हम क्या कर सकते हैं. आपके ये जो दोनों लिप्स है वो लेके जाने हैं आपको आपके नाक की तरफ. इट्स लाइक दिस. और उसके बाद धीरे से नेक को ऊपर उठाना है. You feel more and more stretched in your throat region. आपकी थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पे होती है, उसको जितना आप स्ट्रेच करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है. ओके. यस. सो ये फिर से एक बार करेंगे. हाथ ऐसे थाइस पे रखने हैं आपके. अगर चाहिए एक दो लोग आप वीडियो भी शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, if they allow. Yes. Lips to your nose and stretch. सर मैडम नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो और धीरे से नीचे आओ. परफेक्ट. यस. अब ये था थायराइड के लिए. हमने नेक के लिए भी देखा है. अब हम देखते हैं हमारे शोल्डर्स के लिए क्या कर सकते हैं. आई टेल यू, अभी जो मैं आपको टेक्निक दिखाने वाली हूँ उससे आपकी लंग कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज होगी. इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी. बहुत ही इजी है. अगेन ऑफिस में बैठ के आराम से कभी भी आप ये कर सकते हो. आपकी चेस्ट आपको अच्छे से ओपन करनी है, बैक को स्ट्रेट रखना है. एक बार में दो बार में करके दिखाती हूँ. जस्ट ऑब्जर्व माय पोस्चर एंड देन यू गो अहेड. फर्स्ट आपको हाथ ऐसे रखने हैं, फिंगर्स ओपन नाइसली. अब धीरे से सामने आएंगे. इनहेल एंड ओपन योर आर्म्स, गेज इन फ्रंट. एक्सेल डाउन. इनहेल एंड ओपन. करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. एक्सेल डाउन. इनहेल एंड ओपन. कम ऑन. 1. एक्सेल डाउन. इनहेल ओपन. एक्सेल डाउन. ब्रीदिंग की आवाज करो अच्छे से. इनहेल ओपन. एक्सेल डाउन. 3 more rounds. Inhale open. Exhale down. Inhale open. Smile on your face, everyone. Exhale down. 2 more rounds. Inhale open. Exhale down. Inhale open. वहां पे होल्ड करना है. हाथ अच्छे से ओपन करेंगे. Slowly exhale and down. Hands near to your chest, everyone. And place your palms on your thighs. Perfect. अब थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो. Yes. हमने अभी देखा जो एक्सरसाइज लंग्स के लिए, आई टेल यू बहुत अच्छा है.
आप आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये सिखा सकते हो, क्योंकि आजकल जो हो रहा है, जो सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, हर एक मुझे पूछ रहे थे कि लंग्स कैपेसिटी, ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप ये करो, कहीं पे भी कैसे भी, आप खड़े होके स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, आप चेयर में बैठ के, आप सोफा से टीवी देखते हुए भी ये कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि स्ट्रेस हमें कम करना है, तो एक पर्टिकुलर आपको, आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप बहुत अगर बिजी हो, तो आप आपके चेयर पे बैठ के भी अच्छे से आप स्ट्रेस, जो आपका जो स्ट्रेस है वो आप अच्छे से इजीली मैनेज कर सकते हो। ओके, अगेन स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल कम मत होने देना। आपकी स्माइल देख के स्ट्रेस भाग जाता है। कोई भी आपके सामने ऐसे, ये भी एक रेमेडी है, कोई भी ऐसे आपके सामने आया, आपसे डील, आपकी डील उनसे अच्छे से नहीं हो पाती, यू जस्ट स्माइल एंड टॉक विथ हिम और टॉक विथ हर। तो स्माइल करके ये करने की कोशिश करो, आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो स्ट्रेस है, वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। यस, तो हमने ये देखा। अब थोड़ा लोअर बॉडी के लिए देखते हैं, हमारे लेग्स के लिए देखते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर आपको कुछ नी प्रॉब्लम है तो मत करो, लिमिटेशंस आ जाएंगे। पर आपके पैर अगर स्ट्रेंथ है अच्छे से, तो ये आप बिल्कुल भी कर सकते हो। पैर ऊपर उठाना है और बस ऐसे लॉक करना है और यहाँ पे लेके आना है। इट्स वेरी इजी। मेरा फीट देखो, एकदम रिलैक्स है नीचे की तरफ। बैक को स्ट्रेट रखो और सामने देखो अच्छे से, विथ स्माइली फेस। कम ऑन, 3 ब्रीदिंग्स, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, and last round, close your eyes everyone, डोळे बंद करायचे, inhale and exhale. सुपर. हात खाली ठेवायचे, पाय असाच ठेवायचा, पाय हळूहळू खाली जाईल. सुपर. आता लेफ्ट लेग, नाउ लेफ्ट लेग, make a finger lock, perfect. Gaze in front, back straight. And come on, 3 breathings, close your eyes. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Super. Down your arms, down your leg. Perfect. ये आप कर सकते हो। एक ट्रेडिशनल आसन है, इट्स कॉल्ड एज पवन मुक्तासन, जो हम सो के करते हैं। आज हम चेयर योग करें, यही एक्शन हम पवन मुक्तासन में करते हैं। जो आप में से योग करते हैं उनको बिल्कुल पता होगा। तो इसमें होता क्या है, अपने आप देखोगे कि आपका जो पैर है, आपकी ये जो स्पेशली थाई रीजन जो है, वो आपके पेट के ऊपर आएगा। थोड़ा सा आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन्स में थोड़ा सा प्रेशर देगा। तुमची जी फुफ्फुसं आहेत ती ओपन करण्याचं काम, ती स्वच्छ करण्याचं काम हे आसन करतं। सो वो क्लीन करेगा अनवांटेड गैसेस, जैसे मैंने पहले कहा था, कॉन्स्टिपेशन, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये आप चेयर में बैठ के बिल्कुल भी कर सकते हो। ओके, सो बस एक ही याद रखना, चेयर योग करते समय आपकी जो पीठ है, आपकी जो बैक है, वो सीधी रहनी चाहिए। बेंड करके बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करो। यस, अब आजकल लोगों का और दूसरा प्रॉब्लम बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक तो हम ऑफिस का काम लैपटॉप पे करते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में होता है हमारा मोबाइल, व्हाट्सएप पे हम होते हैं, तो जो स्क्रीन टाइम है वो हमारा काफी बढ़ गया है। और अनफॉर्चुनेटली उस स्क्रीन टाइम की वजह से हमारे आंखों में काफी परेशानियां आना शुरू हुआ है। तो हम जो नेक्स्ट है वो हम आंखों के लिए देखेंगे। आंखों के लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है, मैं पहले करके दिखाती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, आफ्टर दैट विल रिपीट अगेन। ओके, नाउ यस, मैं पहले आंखें अच्छे से बंद करूंगी, देन मैं आंखें खोलूंगी, देन turn to right side,
नॉर्मल ब्रीदिंग, सामने देखूंगी, देन टर्न टू लेफ्ट, पूरे कॉर्नर में आंखें लेके आनी है, सिर्फ आंखें लेके आनी है, ऐसे देखना नहीं है, सिर्फ आंखें आएंगी। वन मोर टाइम, राइट साइड कॉर्नर स्ट्रेट, लेफ्ट साइड कॉर्नर स्ट्रेट। आप आपके चेयर में बैठ के कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्या होगा, धीरे से आंखें ऊपर लेके जानी है, हम सामने देखेंगे और धीरे से नीचे लेके आएंगे और सामने देखेंगे। याद रखो, जब आंखें नीचे लेके आते हो तो आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, उसका मतलब आपके चश्मे का नंबर शायद थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बी केयरफुल, अपने आप को ऑब्जर्व करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी है। जस्ट रिमूव योर स्पेक्ट फर्स्ट, चश्मा निकाल के रखना है नीचे, परफेक्ट। आंखों के ऊपर हाथ रखो सब लोग, योर फिंगर्स, पाम रखना नहीं है, फिंगर्स रखने हैं, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। हाथ नीचे, धीरे से आंखें खोलनी है, सामने देखना है। नाउ विथ मी, वेरी स्लोली डू इट, एकदम धीरे से करो, आंखें खुली रखो। बहुत फास्ट करोगे तो चक्कर आएगा। धीरे से आंखें राइट साइड में जाएगी, एकदम कॉर्नर में, सामने देखना है। नाउ लेफ्ट साइड, सामने देखेंगे। नाउ आप लुक अप, लुक अप, लुक अप, डाउन एंड नाउ लुक डाउन। सुपर, वेरी नाइस। एक बार फिर से, फिंगर्स ऑन योर आईज, एव्हरीवन। हाताची बोट डोळ्यांवर ठेवायचे, डोळे बंद करायचे, स्पर्श अनुभवा, फील द टच ऑफ योर फिंगर्स, नाइसली जेंटली ओपन योर आईज। परफेक्ट, यस। सो ये भी आप आराम से कभी भी कर सकते हो। मैं मोस्टली आपको बताना चाहूंगी कि 2 घंटे काम करने के बाद आप अगर थोड़ा सा फटीग महसूस करते हो, आंखें बंद करो और मैंने जैसे बताया, दोनों हाथों से आपको, फिंगर्स से आपको बंद करनी है आंखें, और उसके बाद ये आप अच्छे से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, यस। अब हम देखेंगे एक आसन। आसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी चेस्ट, आपके जो लंग्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और आपके जो बैक के मसल्स है वो ओपन करने के लिए। ये आसन बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल आसन जो है वो बहुत ही अच्छा है। द नेम ऑफ द आसन इज पर्वतासन, इन इंग्लिश माउंटेन पोस्चर। तो पर्वतासन हम करते हैं, मैं दिखाती हूँ। 2 टाइप से पर्वतासन हो सकता है। मैं अच्छे से यहाँ पे बैठूंगी, फिट ऑन द ग्राउंड, जमीन का जो स्पर्श है, टच है नीचे वाले ग्राउंड का, उसको महसूस करो। अब हाथ यहाँ पे आएगा साइड में, दोनों हाथ। आपके चेयर में अगर हैंड रेस्ट है, नो प्रॉब्लम, वहां पे भी आप ऐसे हाथ रख सकते हो। अब धीरे से हाथ आपके शोल्डर लाइन में आ जाएंगे। Hands in the shoulder line and smile on your face, everyone. बॉडी में स्ट्रेस कितना है, मसल में टेंशन कितना है, आपको पता चलेगा। सिर्फ शोल्डर लाइन में हाथ रहेंगे आपके। आप मुझे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब सिर्फ आपके पाँव जो है वो ऊपर की तरफ, और उसके बाद धीरे, बहुत ही धीरे, जितना हो सके उतना धीरे, जस्ट मेक अ नमस्कार मुद्रा और फिंगर लॉक। कोशिश करिए कि आपके जो बाइसेप्स है वो आपके कान के यहाँ तक टच हो। आपके हाथ आपके कान पे टच होने की कोशिश करेंगे।
लॉन्ग स्पाइन, बैक स्ट्रेट करके बैठो। एल्बो स्ट्रेट रखो, एल्बो बिल्कुल भी स्ट्रेट रहेंगे आपके। धीरे से हाथ फिर से शोल्डर लाइन में, palms to ground and slowly down your arms. आंखें बंद सबकी, just close your eyes. डोळे बंद ठेवा. हातामधला आणि पाठीमधला स्ट्रेच फक्त अनुभवायचा आहे. वन मोर टाइम. पुन्हा एकदा करूया. इनहेल अँड आर्म्स अप. Exhale and down. Smile on your face, back straight. Inhale and up. Exhale and down. Two more rounds. Inhale and up. Exhale and down. Last one round. If possible, close your eyes. आंखें बंद रखो. Last round करेंगे. काफी स्ट्रेच हो रहा है आपकी पीठ में. I know. महसूस करो उसे. Inhale and up. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, and 4, 3, 2, 1. Exhale and come up. Relax, just relax. Place your palms on your thighs and relax. आंखें बंद रहेगी. सबको अपने अपने चेयर पे रिलैक्स करना है. पीठ पीछे की तरफ जाएगी. पैरों में अच्छे से अंतर रहेगा. हाथ, नेक, चेस्ट, just relax. आंखें बंद रहेगी सबकी. सुपर. कम बैक अगेन. दूसरी तरफ तरीके से हम देखेंगे आसन कैसे है. बस आपको हाथ यहाँ पे रखने हैं नियर टू योर चेस्ट इन नमस्कार मुद्रा. Deeply inhale and raise your arms. Exhale and down your arms near to your chest. Everyone with me. Come on. Inhale and out. Exhale and down. Inhale and up. In a one line, elbow straight. Exhale and down. And relax. Very nice. Perfect. So अभी जो हमने देखे थे वो था पर्वतासन. पर्वतासन के मैंने 2 प्रकार आपको दिखाए. ये आप कैसे भी कर सकते हो. अगेन लंग्स के लिए बहुत अच्छा है. आपको अभी पता चला होगा कि आपके जो बैक के मसल से, पीठ के मसल से, उनमें कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो कितने वीक है, या और आप उनको कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. ऐसे आसन करने से जब आप उस आसन के साथ ब्रीदिंग करते हो, ये ब्रीदिंग आपको स्ट्रेस से दूर हटाता है. ओके, मतलब आपका ब्रीदिंग करने से आपका जो स्ट्रेस है वो काफी कम होता जाएगा. अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ. प्राणायाम सबको अच्छा लगता है. आज मैं स्ट्रेस के लिए कौन सा प्राणायाम अच्छा है वो आपको बताऊंगी, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, या वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उनमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स काफी होती है. नींद अच्छे से ना आना, बार बार ब्रेक होना, या बहुत सारे बैक टू बैक सपने आना, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है. या कुछ काम की वजह से घर में बहुत ज्यादा काम है,
स्पेशली फीमेल में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। मतलब हमें सिर्फ 4-5 घंटे की नींद होती है हमारी, और उसके बाद हम फिर से काम के लिए चले जाते हैं। ऐसे भी कंप्लेंट्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों में होता है। उनके लिए आज मैं एक प्राणायाम आपको बताऊंगी। उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इट्स भ्रामरी प्राणायाम। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। भ्रामरी प्राणायाम जो है उससे स्ट्रेस काफी कम होता है, ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। और इस प्राणायाम का मीनिंग क्या है? तो भ्रामरी मतलब हनी बी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और मराठी में कहते हैं जिसे हम भुंगा, भुंग्यासारखा आवाज ह्याच्यामध्ये आपण काढायचा आहे. सो यू हैव टू प्रोड्यूस साउंड लाइक अ हनी बी, लाइक इस तरीके से हमें इसमें आवाज निकालना है। तो ये इसके पूरे जो स्टेप्स है वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। इसमें हमें भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले तो अच्छे से सांसें अंदर लेनी है। यू हैव टू इनहेल फर्स्ट, ओके। मैं हर एक लैंग्वेज में पूरी स्टेप्स आपको बताती हूँ। आपको पूरी सांसें जो है वो अच्छे से अंदर लेनी है। देन close your thumbs with close your ears with your thumb like this. ऊपर हाथ रखना है, ओके। Then close your eyes with your index and middle finger, and then close your lips with your little finger. आपल्याला आपले जे कान आहेत ते अंगठ्यानी बंद करायचे अशा पद्धतीने. त्यानंतर डोळे या 2 बोटांनी, आणि त्यानंतर ओठ यांनी बंद करायचे. अब ये हम सब क्यों कर रहे हैं, ये हम मुद्रा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन भी आपको बताती हूँ कि योग में कहा गया है, बहुत एक अच्छी कॉन्सेप्ट बताई गई है कि प्रत्याहार की। प्रत्याहार होता क्या है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, उन सेंसरी ऑर्गन्स, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये काफी बाहर की तरफ भागते रहते हैं। कुछ उनको सुनना है, कुछ उनको देखना है, कुछ ना कुछ बोलना ही है, कुछ अच्छे अच्छे जो टचेस है वो महसूस करने हैं। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये काफी बाहर की तरफ, मतलब वो आउटवर्ड होते हैं, और उनको इन्वर्ट करना हमारा काम है। उनको हमें सत्व देना, सात्विक भाव में लेके आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भ्रामरी प्राणायाम करता है। हम जब इनको बंद करते हैं तो अपने आप हमारा मन और अच्छे से बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। तो इस भ्रामरी प्राणायाम से आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। मैं करके दिखाती हूँ इसके स्टेप्स कैसे है। पहले मैं इनहेल करूंगी अच्छे से, आई होप मेरी आवाज आपने सुनी होगी। मैं फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। पहले अच्छे से इनहेल करना है, सांसें अंदर लेनी है, उसके बाद आपके कान, आंखें और लिप्स बंद होंगे। उसके बाद एक्सहेल करते समय, मतलब सांसें बाहर छोड़ते समय आपको ये साउंड प्रोडक्शन करना है। आप ये प्राणायाम सुबह करो, 10 टाइम्स 5 टाइम्स आप कर सकते हो। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो इनिशियल स्टेज पे आप ये प्राणायाम सोते समय भी, विदाउट मुद्रा, सोते समय भी कर सकते हो। मैं 2 बार ये प्राणायाम आपको करके दिखाती हूँ। यू जस्ट लिसन माय साउंड। यस, परफेक्ट। सो इस तरीके से हमें ये भ्रामरी प्राणायाम करना है।
अब आपकी टर्म है, अब आप सब लोग भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। अच्छे से चेयर में बैठो, कीप योर बैक स्ट्रेट, एवरीवन जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंद करनी है, डोळे बंद असतील, धीरे से सांसें अंदर लेनी है और आवाज अच्छे से आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फोर्स यूज कर सकते हो, एकदम थोड़ा सा, वो अपने आप हो जाएगा रादर। यस, गो अहेड, you just go ahead. Perfect. 3 times. 3 times. सॉरी, आई होप आप सबके ये 3 राउंड्स हो चुके होंगे। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम जो है वो आप आपके प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लेना, क्योंकि हठ योग के अलग अलग टेक्स्ट में भी भ्रामरी प्राणायाम को एक स्पिरिचुअल दर्जा दिया गया है। अब दूसरा एक छोटा सा प्राणायाम देखेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रेस से काफी रिलेट करता है। हमारा जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि अब हम क्या करें, तो आप आपके प्राण के ऊपर अच्छे से कंट्रोल करो। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, कूलिंग प्राणायाम, इट्स कॉल्ड एज शीतकारी प्राणायाम। आपकी जो दोनों दांत है ये ऐसे रखने हैं एंड जस्ट सक द एयर थ्रू योर माउथ एंड एक्सेल थ्रू योर नोज। इट्स वेरी इजी। It increases salivary glands in your mouth, so आपके डाइजेशन के लिए भी, जिन्हें बहुत ज्यादा अल्सर्स होते हैं मुंह में, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। सो गो अहेड, आप कूलिंग महसूस करोगे आपके पूरे थ्रोट में, आपके माउथ में। जस्ट गो अहेड, डीप इनहेल and exhale through your nose. Inhale and exhale through your nose. आंखें बंद रखो और महसूस करो कि कूलिंग कितना हो रहा है। यस, परफेक्ट। जैसे हमने सूक्ष्म व्यायाम देखे वो अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ये प्रैक्टिस में रखना। एक जो हमने देखा है प्राणायाम हो, ये आप 5 राउंड्स उसके डेली कर सकते हो बिल्कुल भी, और चेयर आपके पास होती ही है। आप ऑफिस में भी हर एक सूक्ष्म व्यायाम के 3-3 राउंड्स आराम से कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग अगर आप वो करो तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम। जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो सिर्फ शरीर की स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो हमारे मन की स्टेबिलिटी होती है। तो आपके अगर आपका जो मन है वो बैलेंस है, संतुलित है, वो स्टेबल है, वो स्थिर है, तो आपका शरीर, आपका तन भी स्टेबल रह सकता है। ओके, सो
हमारे मन को स्टेबल रखने के लिए आप योग अपनाओ। जितना भी आपके पास टाइम है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, आप कहीं पे भी, जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं कुछ उसके प्रकार जो है, वो आप कहीं पे भी अच्छे से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। Here I'm going to end my lecture, and if you have some questions, any query, you can ask me, no problem. Thank you very much, ma'am, for your very useful chair yoga demonstrative session. So Welcome. you enlightened us that even we can do the yoga by using the chair. Madam has explained different type of stresses and has given the solution for to tackle such a stress that we suffer during our journey of life. Now I call upon Mrs. Jyoti Bhatte ma'am to express vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you very much, sir. Very good morning to all of you. And I'm here to express vote of thanks and conclude the session. Before I proceed, one important notice to all the participants is that tomorrow's session will start sharp at 9 a.m. So please notice that tomorrow we will meet at 9 a.m. I want to express my sincere thanks on behalf of Samaj Shikshan Mandal, Amruteshwar College, and all the organizing committee. I want to express our sincere thanks to our today's speaker, Dr. Sanika Bam Madam. Madam, from all of us, I want to ensure you that your tips and your guidance will always help us to reduce the stress. And I'm sure everyone is feeling very cool and calm after this session. Thank you very much, ma'am. Then I would also like to thank Dr. Praveen Zadav, sir, for giving his time to us and for his best wishes to this program. Thank you, sir. I would also like to thank Professor Nandakumar Sagar, sir, Director, Samaj Shikshan Mandal, Windsor, for always being with us. I would like to thank our guide, our motivator, our principal, Dr. Sanjeev Latte, sir, for being with us. I would also like to thank Dr. Yogesh Rikhande, sir, for giving a brief introduction to the program as well as to the college, to all the audience. I would also like to thank Dr. Rahul Kamble, sir, for smooth conduction of this program. And thank must also go to Professor Sujit Kumar Mane, sir, for smooth on sound support, for sound technical support. I would also like to thank Dr. Sheetal Shankar Madam for organizing such a wonderful program for all of us. And last but not least, I would also like to thank all the participants from all over the country as well as out of the country for participating in this 3 days national seminar and for motivating us. Thank you one and all. And again, it is a reminder to all of you that tomorrow we will meet at 9 a.m. With this and with the prior permission of organizer, I declare that this session is end here, and I request Professor Sujit Mane sir to end the meeting. Thank you once again. Imran Malik sir, do you have any question? Imran Malik sir.
So at the end of this program, I would like to express my vote of thanks toward Professor Nashin Mullah ma'am, Doha, Qatar, Dr. Sharad Magar sir, Professor Rubina Sheikh, Saudi Arabia, Dr. Manohar Mane sir, Mumbai University, Dr. Madhuri Sadgir, Dr. Sujata Shinde ma'am, Bharati Vidyapit, and all the delegates over here. Thanks. With this, if there is no question from the participants, the program, we are going to end the program. Thank you very much.